भाई सोरियासिस के बारे में पूछते रहते हैं, तो मैं 1-2 छोटे-छोटे वीडियोज़ लेके आई हूँ और उनके लिए मैं लगा देती हूँ, फिर वो वीडियोज़ जो हैं वो अ, देखते रहेंगे। तो ये मैं शेयर कर देती हूँ। जी, मिल गया, इसको शेयर करते हैं। Our viewer question today is about psoriasis. And they are curious. I've gotten this question from a couple of different people. If there are any recommendations you have for food or supplements that might help with psoriasis. Psoriasis is really, it's this ancient and clinically stubborn disease that I can't say, I have the magic key for it. And when psoriasis is fully florid, oh, it's just a nasty condition. And, the Oriental physicians divide diseases up into hot diseases and cold diseases. Well, psoriasis is a hot disease. It's really characterized by activity of the cells. Normally, when skin cells are made in the deeper layers of the skin, it takes about almost 2 weeks for the skin cell made in the base layer to work its way up to the surface skin and then be shed in the shower when you're putting on your clothes. And, again, 10 to 14 days. In psoriasis, the escalator is on high, fast drive, and cells make it up from the baseline to the surface skin in 3 days. It was 72 hours. तो ये डॉक्टर क्लैपर हैं, ये कहते हैं कि इनसे पूछा गया कि सोरायसिस जो है क्यों होती है और इससे कैसे ठीक किया जाए? तो डॉक्टर क्लैपर कहते हैं कि सोरायसिस जो होती है बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी बीमारी है। इन्फ्लेमेटरी माने तो बहुत ज़्यादा एक तरह की समझें तो अम इन्फ्लेमेशन को हिंदी में क्या कहेंगे इरिटेशन बहुत ज़्यादा इरिटेशन वाली एक बीमारी है, जिसमें जो स्किन है, नॉर्मल स्किन जो होती है, वो 10 से 14 दिन लगाती है, स्किन के जो निचले हिस्से में नए सेल बने हैं, उनको ऊपर स्तर पे आने में ऑलमोस्ट 2 हफ्ते लगते हैं। वो धीरे-धीरे ऊपर आते हैं वो सेल्स। लेकिन सोरायसिस में क्या होता है, मात्र 2 से 3 दिन में जो नए सेल हैं, वो ऊपर आते जाते हैं और बनते जाते हैं। तो क्या होता है, वो ऊपर बन के वो एक सफ़ेद सी जो है एक उभरा हुआ हिस्सा बना देते हैं, बीच में एक लाल हिस्सा होता है और उसमें बहुत ख़ारिश होती है और जिन लोगों को सोरियासिस होती है, ये एक बहुत ही परेशान करने वाली बीमारी होती है और क्योंकि ये एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है एक इरिटेशन वाली बीमारी है, तो इसका सही से क्यों हो रही है और कैसे इलाज करना है, अधिकांश डॉक्टर जो हैं इसको समझ नहीं पाते हैं। Hours or 4 days. And in fact, they're coming up from the bottom so fast that they don't have time to shed off the top. And that's why these silvery scales build up, the thickened skin builds up from the cells on top. They can't be shed fast enough. And it looks unsightly. You got this fiery red central patch there surrounded by this ring of silvery, scaly skin. And it itches like heck. It's just a dreadful curse. We've known for centuries that sunlight makes it better. Salt water seems to make it better. Lots of people with psoriasis make a pilgrim to the Dead Sea in Israel every year and bask out in the hot sun and get into the salty water, and certainly helps their psoriasis. तो उन्होंने कहा हमने काफ़ी समय से जाना है कि अगर हम इसको सनलाइट में बैठें, सूरज की रोशनी में जाएँ या हम नमक वाले पानी में से नहाएँ, तो सोरियासिस में हमें मदद मिलती है। And this person's asking about food. Do food have any effect
Well, yes, they do. One that we know in that I have had dozens of patients over the years who've adopted a vegan diet and they notice lots of things. They lose weight, their asthma gets better, their blood pressure comes down. And not a few of them over the years say, Doc, my psoriasis, man, you can barely see it now. Wow, it's much better. तो डॉक्टर क्लैपर कहते हैं कि आपने एक प्रश्न पूछा मुझसे, क्या खान-पान से भी सोरायसिस को चेंज किया जा सकता है? तो कहते हैं बिल्कुल चेंज किया जा सकता है। कहते हैं मेरे बहुत से पेशेंट्स हैं जो कि वीगन डाइट फॉलो करते हैं, यानी कि दूध, मीट, अंडा, मच्छी, घी नहीं लेते बिल्कुल डाइट में। जब मैं उनको इस डाइट पे डालता हूँ, तो वो लोग कहते हैं डॉक्टर मेरा ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, मेरी डायबिटीज़ चली गई, मेरी हार्ट डिज़ीज़ ठीक हो गई और उसके साथ-साथ मेरे देखो सोरियासिस भी बिल्कुल ठीक हो गई। सारी मेरी सोरायसिस ठीक हो गई एकदम। सारे जो दाग धब्बे थे सोरायसिस के वो बिल्कुल ठीक हो गए। तो उन्होंने कहा ये जो सोरायसिस है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट से ठीक हो जाते हैं। And I'm happy for them. I rejoice. तो कहते हैं और मैं उनकी ये बात सुन के बहुत खुश होता हूँ कि इस डाइट से जो है सोरियासिस ठीक होती है। तो देखिए हमने देखा कि डाइट से सोरियासिस जो है वो कैसे ठीक की जा सकती है। अब हम देखेंगे वो कौन से जो खाने हैं, किस तरह के खाने हैं जो कि एक्चुअली इन्फ्लेमेशन कॉज़ करते हैं क्योंकि सोरायसिस क्या है? इन्फ्लेमेशन के कारण सोरायसिस होती है। तो हम वो खाने अगर अवॉइड करें जिनसे इन्फ्लेमेशन होता है, तो नेचुरली सोरायसिस जो है वो बेटर होगी। Which foods cause inflammation and which foods reduce it? And why does it matter? That's what we'll be looking at in this video and next. Excessive inflammation may play a role in a number of leading causes of death and disability, including type 2 diabetes, obesity, heart disease. But what are the stimuli that jumpstart the deleterious inflammatory cascade? तो उन्होंने कहा कि जो ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होती है, यानी कि ये जो इरिटेशन होती है, ये बॉडी में एक तरह की आग लगने की जो स्थिति आती है, ये किन-किन बीमारियों से है? कहते हैं अधिकांश जो बीमारियाँ हैं, ये सब उससे रिलेटेड हैं, जैसे टाइप 2 डायबिटीज़, मोटापा हो गया, हार्ट डिज़ीज़ हो गई और हमने देखा है कि क्या चीज़ जो है ये इन्फ्लेमेशन को जो है वो बढ़ाती हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर हम लंबे समय तक हाई सैचुरेटेड फैट डाइट खाते रहें, तो हमारे अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है और ये हाई सैचुरेटेड फैट डाइट आती कहाँ से है? ये आती है एनिमल प्रोटीन से। एनिमल प्रोडक्ट्स से जैसे दूध, मीट, अंडा, मच्छी और घी। You typically hear about the pro-inflammatory nature of a chronic high-fat diet, but the inflammatory effect may not be limited to chronic intake. May be evident after the consumption of a single meal. Within hours after eating an unhealthy meal, inflammatory markers like IL-6. तो कहते हैं ऐसा नहीं है कि आपको बहुत लंबे समय तक ये डाइट लेनी पड़ेगी तो आपके अंदर इन्फ्लेमेशन शुरू होगी। कहते हैं अगर एक सिंगल मील भी आपने गलत खा ली, तो पाया गया है कि जो इन्फ्लेमेशन के मार्कर्स हैं, इंटरल्यूकिन 6 यहाँ पे, आपने एक खराब मील खाई तो देखो आपके इंटरल्यूकिन मार्कर्स कैसे एकदम स्ट्रेट लाइन में बढ़ गए, यानी कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ गई। Interleukin 6 can skyrocket, doubling within 6 hours. इंटरल्यूकिन 6 जो इन्फ्लेमेशन का मार्कर है वो डबल हो गया मात्र 6 घंटे के अंदर-अंदर जब आपने दूध, मीट, अंडा, मच्छी वाली जैसी कोई ज़्यादा डाइट कंज़्यूम कर ली। The majority of studies show an increase in IL-6 after the consumption of a high-fat meal. But the meals they tested weren't just filled with meat, eggs, dairy, and oil, but also junky refined carbs like white flour and added sugar. Yes, give people essentially straight butterfat and no carbs, and you can still get a spike in inflammation within hours, proving the added fat itself is pro inflammatory. But give people straight sugar water without any fat, and you can get the same thing, proving the added sugar is pro inflammatory too. तो वो कहते हैं कि जब हम लोगों को फैट देते हैं
ये खराब वाला जो फैट देते हैं, तो हम पता लगाते हैं कि लोगों के अंदर इन्फ्लेमेशन के मार्कर्स बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर हम लोगों को सिर्फ चीनी भी दें, तो भी इन्फ्लेमेशन के मार्कर्स बढ़ जाते हैं। यानी कि ये जो एनिमल फैट है, ये भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज़ करता है और जो चीनी है, वो भी इन्फ्लेमेशन कॉज़ करती है। तो यदि आप ये 2 चीज़ें अपनी देन इट मेक्स सेंस राइट? फिर तो ये कॉमन सेंस की बात हो गई कि यदि हम अपनी डाइट से ये 2 चीज़ें निकाल दें, यानी कि एनिमल फैट निकाल दें, दूध, मीट, अंडा, मच्छी, घी निकाल दें और दूसरी चीज़ यदि हम अपनी डाइट से चीनी निकाल दें, तो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगी ही नहीं, हमारी बॉडी एकदम यंग और हेल्दी रहेगी। और इसका सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है स्वामी शिवानंद जी, जो 127 एज के हैं, दुनिया के सबसे लॉन्गेस्ट लिविंग ह्यूमन बीइंग हैं, आज भी ज़िंदा हैं, बिल्कुल सीधा चलते हैं और जब पद्मश्री मिला था पिछले साल, ज़मीन पे सर रख के उन्होंने नमस्कार किया था और वो एकदम हम इमेजिन भी नहीं कर सकते 127 इयर्स के वो कितना अच्छे से वो अपना जीवन जी रहे हैं बिना किसी सपोर्ट के। और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी 1 चम्मच चीनी भी नहीं खाई, 1 दाना भी चीनी का पूरी ज़िंदगी में नहीं खाया और 1 घूँट भी दूध नहीं पिया। और वो तो क्या कहते हैं योगी हैं तो नेचुरली अंडा, मीट, मच्छी तो वैसे ही नहीं खा रहे। तो यानी कि उन्होंने वो वीगन डाइट पे हैं और प्लस कोई चीनी नहीं खाई पूरी ज़िंदगी, 10-20 साल नहीं पूरी ज़िंदगी और देखो उनकी हेल्थ कैसी है। तो ये प्रूफ होता है कि इन्फ्लेमेशन जो है बॉडी में चीनी और दूध, मीट, अंडा, मच्छी दोनों से आता है। Sugar is pro inflammatory too. Why should we be concerned with the inflammatory responses after unhealthy meal ingestion? Because substantial research points to the notion that persistent low grade inflammation is an underlying factor in several high mortality chronic diseases, and that diet can contribute to or attenuate that inflammation. You'll note in this graph that IL 6 levels jumped up to about 3 picograms per milliliter. You start regularly getting up to levels of about 3, and that's associated with twice the risk of death. And ये बहुत ज़रूरी है। तो कहते हैं कि हम इन्फ्लेमेशन के बारे में इतनी चिंता क्यों करें? वो कहते हैं हमने अभी देखा कि सिर्फ़ एक बार अगर हम गलत खाना खा लें, तो हमारी 6 घंटे के अंदर-अंदर हमारे जो इंटरल्यूकिन 6 है, जो इन्फ्लेमेशन का मार्कर है, वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। लेकिन अगर लंबे समय तक ये बढ़ा रहा है, यानी कि हम रोज़ इसी तरह का खाना खाएँ, दूध, मीट, अंडा, मच्छी, घी इस तरह का कुछ ना कुछ खाने में खाते रहें, बाहर का खाना, प्रोसेस्ड फूड, पैकेज का खाना, तो क्या होगा कि रोज़ हमारा इंटरल्यूकिन 6 बढ़ा रहेगा। और हमने देखा है कि जिन लोगों का इंटरल्यूकिन 6 या इन्फ्लेमेशन बॉडी में लंबे समय तक बढ़ा रहता है, 3 तक पहुँचता है अधिकांश समय, तो क्या होता है, उनका जो डेथ का रेट है, वो डबल हो जाता है। तो मतलब बॉडी में हेल्थ सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स डबल हो जाती हैं। of death. And that increased risk was found across the board, compiling 8 other similar studies, likely because it's linked to an increased risk of heart disease, the number one killer of men and women, even about as strongly as some other major established तो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, ऐसे लोगों में हार्ट डिज़ीज़ का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, दो डबल हो जाता है मतलब 200% बढ़ जाता है। तभी हम इंडिया में कहते हैं हार्ट अटैक इतना ज़्यादा हो रहा है क्योंकि हमारा जो जो वेजिटेरियन लोग भी हैं, वो भी दूध तो ले ही रहे हैं ना और बल्कि वेजिटेरियन जो हैं वो दूध कंज़म्पशन ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि वो मन में सोचते हैं कि हम मीट नहीं खा रहे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये पनीर हेल्थ के लिए खाना चाहिए और अब काफ़ी लोग अंडा भी खा रहे हैं, तो हमारी एनिमल प्रोटीन और सैचुरेटेड फैट जो एनिमल से आ रहा है उसकी मात्रा बहुत अधिक बढ़ गई है और आजकल फास्ट फूड और होम डिलीवरी इनका भी चलन ज़्यादा हो गया है। लोग लाइफ में बिज़ी हैं तो बाहर का खाना भी ज़्यादा से ज़्यादा खा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम है कि हम हमारी जो है रिस्क बढ़ रहा है इन डिज़ीज़ेज़ का। risk factors like high cholesterol. Now, not all high fat foods cause inflammation. More than a dozen studies combined show that whole plant foods such as nuts do not increase inflammatory markers, even eating up to handfuls of nuts a day. In fact, spread half an avocado on a beef burger, and you may be able to blunt some of the
तो कहते हैं कि हर तरह का जो फैट है वो बुरा नहीं होता। जैसे नट्स और सीड से आने वाला फैट, तेल के शेप में नहीं, जो होल सीड और नट्स हम खाते हैं, जैसे कि अगर आपने अखरोट खाए, बादाम खाए, पिस्ताशियो खाए, कैश्यूज में काफ़ी फैट होता है तो कम खाना चाहिए। वैसे ही सारे नट्स जो हैं हमें थोड़ी मात्रा में खाने चाहिए। तो कहते हैं अगर हम खाते हैं तो भी हम देखते हैं कि हमारा जो है हार्ट डिजीज़ का रिस्क बढ़ता नहीं है बल्कि कम होता है। जैसे अगर हम बीफ बर्गर के ऊपर आवाकाडो लगा दें, तो अगर सिर्फ बीफ बर्गर हो तो देखिए इन्फ्लेमेशन कैसे पीक करता है। लेकिन उसी बीफ बर्गर के ऊपर अगर हम आवाकाडो डाल दें तो फ्लैट लाइन हो जाती है, मतलब इन्फ्लेमेशन को हमने बढ़ने ही नहीं दिया, आवाकाडो ने उसमें बहुत मदद की। तो ये है प्लांट्स की पावर कंपेयर टू मीट, दूध, मीट, अंडा, मच्छी। Inflammation caused by the meat, even lean meat. There are reviews purporting to show a drop in inflammatory markers after eating wild game, which is about as lean a meat as you can get, but that's only compared to store bought meat. Give people some really fatty meat, and their IL 6 shoots up, as does their tumor necrosis factor and C reactive protein. Inflammatory, inflammatory, inflammatory. तो अगर आप उनको जो नॉर्मल मीट लोग खाते हैं स्टोर में मिलने वाला, जैसे कि बर्गर वगैरह हम खाते हैं बाजार से, चिकन, मीट, अंडा, मच्छी लाके बनाते हैं, तो देखिए सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं उन लोगों की बढ़ जाती हैं। इंटरल्यूकिन 6 एकदम आसमान में जैसे कोई शूट किया हो, आपने गोली शूट की हो, उस तरह से आपका इन्फ्लेमेटरी मार्कर बढ़ जाता है। आपका जो है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ये भी एक इन्फ्लेमेटरी मार्कर है, ये एकदम आसमान को छूने लगता है। आपका जो सी रिएक्टिव प्रोटीन है ये एकदम खाना खाने के 1 घंटे के अंदर ही अंदर एकदम बढ़ जाता है। तो 1 से 2 घंटे के अंदर-अंदर जब भी हम इस तरह का कोई खाना खाते हैं, हर तरह का इन्फ्लेमेटरी मार्कर हमारी बॉडी में बढ़ जाता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये इस तरह की डाइट हमारे लिए कितनी ज़्यादा हानिकारक है। Within hours of it going into your mouth. But what if you instead eat a kangaroo steak? Extremely low fat on the order of elk or moose. What you get is inflammatory, inflammatory, inflammatory. Again, within hours of it going into your mouth. Now, certainly less inflammatory than conventional meat you might get at the store, but pro inflammatory nonetheless, increasing markers of inflammation within mere hours. तो कहते हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप किस तरह का दूध, मीट, अंडा, मच्छी खाएँ। कई लोग कहते हैं कंगारू का मीट खाओ, इस तरह का खाओ, पर कहते हैं फ़र्क नहीं पड़ता। रिसर्च शो करती है अगर आप इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, तो आपका बढ़ जाएगा, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो हैं बॉडी में बढ़ जाएँगे। तो अब हम नेक्स्ट वाला वीडियो देखते हैं। अब हमने देखा किस तरह की चीज़ें बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज़ करती हैं। तो उनका स्पेसिफिक क्वेश्चन मेरे से ये था कि जी नसीमा बहन गुड नाइट। अ, शब्बा खैर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो उनका क्वेश्चन था कि सोरियासिस जो होती है क्यों होती है? वो हमने बता दिया इन्फ्लेमेशन के कारण होती है, यानी कि एक तरह की इरिटेशन के कारण होती है। दूसरा, जिस तरह और उसको कम कैसे किया जाता है, डॉक्टर ने कहा अगर आप वीगन डाइट लेंगे, नमक वाले पानी से नहाएँगे, तो आपकी वीगन डाइट मतलब दूध, मीट, अंडा, मच्छी बंद कर देंगे। तो पेशेंट्स उनको आके बोलते हैं कि हमारी पूरी सोरियासिस जो थी वो चली गई। तीसरा हमने देखा कि किस तरह के जो खाने हैं, वो इस इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं। अब हम एक छोटा-सा वीडियो देखेंगे कि वो किस तरह के खाने हैं, जो इस तरह की इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स कौन से होते हैं? Intervention studies to enhance healthy aging need appropriate outcome measures, such as blood-borne biomarkers, which are easily attainable, cost-effective, widely accepted. We need blood-borne biomarkers of mortality risk. For example, having higher levels of C-reactive protein in your blood may increase your risk of dying prematurely by 42%. C-reactive protein is the most widely used inflammatory biomarkers for predicting mortality. Those with the highest levels of IL-6, interleukin 6, another marker of inflammation, may increase premature death risk 49%.
तो अभी जो हमने देखा था अम, अभी जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि सी रिएक्टिव प्रोटीन इंटरल्यूकिन 6 ये जो बायोमार्कर्स थे, इन्फ्लेमेशन के जो मार्कर्स थे, ये ब्लड में सिर्फ एक बार अगर हम गलत खाना खाएँ, दूध, मीट, अंडा, मच्छी, घी वाला खाना खाएँ, तो मात्र 1 से 2 घंटे के अंदर-अंदर ये मार्कर बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे रिसर्च ये बता रही है कि वो मार्कर बढ़ गए तो क्या? अब हमें पता चल रहा है कि जिन लोगों में ये मार्कर बार-बार बढ़ते हैं, यानी कि काफ़ी समय तक बढ़े रहते हैं, इन लोगों में मरने का जो रिस्क है, वो 40 से 60% जो है डेडली डिज़ीज़ेज़ इन लोगों में बढ़ जाती हैं। What can we do to bring it down? In my last video, I talked about foods we eat that can contribute to inflammation, like meat and sugar, versus foods like nuts that don't. But what about anti-inflammatory foods that actually that to a high-fat meal with load? White potatoes, white bread, ham, cheese, butter, and more cheese with or without a single cup of blueberries. Add blueberries and get a significant drop in IL-6 from that meal. What about raspberries? Feed people eggs, butter, white potatoes, white flour biscuits, and sausage with or without 2 cups of frozen raspberries blended with water into a smoothie, compared to giving people the same amount of calories and carbs in banana form. Bananas were no match for the meat, eggs, dairy, and crappy carbs that resulted in a tripling of IL-6 levels within 4 hours. But instead, drink those 2 cups of raspberries, and your body's able to hold the line. Why did raspberries work whereas bananas didn't? Maybe it's the antioxidants? Well, antioxidant supplements failed miserably. No benefit from antioxidant vitamins and minerals like vitamin C and E, beta carotene, or selenium. Those special antioxidant pigments, the anthocyanins that give berries those bright red, blue, and purple colors. And indeed, that's what dozens of randomized controlled trials have demonstrated. Whereas a half dozen studies combined show pomegranates, a fruit packed with anthocyanin pigments, can bring down inflammation over time. What about adding spices to तो उन्होंने बताया कि ये जो इन्फ्लेमेशन होता है इसको हम कम कैसे कर सकते हैं? तो पाया गया कि जब लोगों को ये गलत तरह की डाइट दी गई, तो हमने पाया 1 से 2 घंटे में उनकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत अधिक बढ़ गया। लेकिन इन्हीं लोगों को इस गलत डाइट के साथ-साथ जब हमने कोई ब्लूबेरीज़ दी गई, रास्पबेरी दी गई, इस तरह का कुछ खाना दिया गया, इस तरह का जब खाना दिया गया तो हमने पाया कि इनमें जो इन्फ्लेमेशन के मार्कर्स थे वो कम हो गए, यानी कि उतनी इन्फ्लेमेशन इनमें नहीं हुई। एक सेकेंड, आई नीड टू ड्रिंक सम वाटर। थैंक यू। तो उनमें इतनी इन्फ्लेमेशन नहीं हुई, यानी कि खराब वाली चीज़ों को भी कंट्रोल करने के लिए हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हैं वो बेहद मदद देते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे जो अ, खाना था ब्लूबेरीज़ या रास्पबेरीज़, इनमें ऐसी क्या चीज़ थी जिसने हमारी मदद की? तो वो चीज़ है एंटीऑक्सीडेंट्स, जो हमने पहले बात की थी। जो अलग-अलग रंग होता है अलग-अलग सब्ज़ी और फ्रूट्स में, वो अलग-अलग रंग एक-एक अलग-अलग तरह का एंटीऑक्सीडेंट होता है, और ये सारे जो अलग-अलग रंग होते हैं, यही वो बाम की तरह, मलहम की तरह काम करते हैं, जो बॉडी में जहाँ कहीं भी इन्फ्लेमेशन हो, उसको कम कर देते हैं। इन्फ्लेमेशन है जैसे बॉडी में आग लगी हो, और ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जो रंग-बिरंगी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, ये काम करते हैं जैसे उस आग में आपने पानी डाल दिया हो। लेकिन उसी आग में यदि हम गलत चीज़ें डालेंगे, जैसे दूध, मीट, अंडा, मच्छी, घी डालेंगे, तो लिटरली उस आग में हम घी डाल रहे हैं, क्योंकि जो इन्फ्लेमेशन है, वो तो हुआ ही इन कारणों से है। इसीलिए हमें इसका बहुत ध्यान रखना है। meals as an approach to cool down inflammation? Supplementation with grape and turmeric extracts did not affect the inflammatory response to a milkshake, but give people
actual turmeric, 1 teaspoon a day of the whole spice, and you can get a significant drop in IL-6 levels. तो कहते हैं कि इसके साथ-साथ यदि हम लोगों को हल्दी दें, तो अगर हम आधा या 1 चम्मच हल्दी दें, उसमें 1 चुटकी काली मिर्च डालें, तो हम देखते हैं कि उनकी इन्फ्लेमेशन बहुत ही कम हो जाती है। तो ये इन्फ्लेमेशन कम करने का तरीका है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दें, अलग-अलग कलर्स की दें और साथ में उनको हम हल्दी दें। तो अगर आप दिन में आधा चम्मच हल्दी लें, उसमें 1 चुटकी काली मिर्च डालें, तो वो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। But not when you just give people purified curcumin supplements. लेकिन ये गोली सप्लीमेंट से नहीं, नॉर्मल जो हल्दी होती है, वो देनी चाहिए। Garlic powder reduces और उसमें भी मैं कहूँगी ऑर्गेनिक हल्दी लीजिए क्योंकि मुझे मसालों में कोई विश्वास नहीं है और अगर आपको ऑर्गेनिक हल्दी नहीं मिल रही तो बाज़ार से हल्दी खरीद के घर में खुद पीस लीजिए। IL-6 levels as well, starting at about a half a teaspoon a day, and ginger powder, just ground ginger, show the same thing with doses ranging from half a teaspoon to 1.5 teaspoons. और जो जिंजर पाउडर है वो भी अगर आधा चम्मच दिन में आप लो तो आपकी इन्फ्लेमेशन काफ़ी कम हो जाएगी। Of course, another way to mediate the inflammation caused by a sausage and egg McMuffin is to not eat it in the first place. What about just eating a plant-based diet? To my surprise, the drop in IL-6 did not reach statistical significance. Whenever a dietary intervention doesn't have the result you expect, you always have to ask, well, what was the diet they exactly ate? The study mostly looked at the Mediterranean diet, which certainly has more plants, but maybe the diets didn't go far enough. To figure that out, we can turn to Dr. Turner McGreevy's famous New Diets study, where people either continued to eat their regular, fully omnivorous diets or were randomized to eat a vegan diet, a vegetarian diet, a pesco vegetarian diet, or a semi-vegetarian diet that, for example, limited red meat. So whereas the vegan might eat red beans and brown rice with chopped tomatoes and roasted peppers for dinner, the ovo-lacto vegetarians might add some cheese. The pesco vegetarian might add shrimp, and the semi-vegetarian might have some turkey sausage. What happened? Within 2 months, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अलग-अलग डाइट्स जो थी लोगों को अलग-अलग डाइट्स पे डाला। एक ग्रुप था वीगन जो कोई भी एनिमल प्रोडक्ट नहीं खाता था, दूध, मीट, अंडा, मच्छी, घी ये नहीं लेता था। दूसरा ग्रुप था जो वेजिटेरियन था, यानी कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स के साथ-साथ वो दूध भी लेता था, तो वो चीज़ वगैरह भी खाते थे। एक ग्रुप था जो ये सब तो खाते ही खाते थे, साथ में फिश भी खाते थे। एक ग्रुप था जो ये सब खाने के साथ-साथ थोड़ा बहुत मीट खाते थे और एक ग्रुप वो था जो हर तरह का मीट काफ़ी मात्रा में खाते थे और फिर उन्होंने 2 महीने बाद क्या पाया? turkey sausage. What happened within 2 months to their dietary inflammatory index scores? The dietary inflammatory index is a measure of how inflammatory your diet is. Negative scores mean your overall diet is anti-inflammatory, and the lower the better, whereas positive scores mean your diet is, on balance, pro-inflammatory. तो फिर उन्होंने इन पेशेंट्स में डायटरी इन्फ्लेमेशन स्कोर टेस्ट किया और ये क्या स्कोर है? ये स्कोर बताता है कि आप जो डाइट खा रहे हो, वो आपकी बॉडी में कितनी आग लगा रहा है, कितनी इन्फ्लेमेशन कॉज़ कर रहा है, कितनी इरिटेशन कॉज़ कर रहा है। अगर आप नेगेटिव में हो, इसका मतलब आपकी डाइट आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज़ नहीं कर रहा, इन्फ्लेमेशन ठीक कर रहा है। आपकी बॉडी में जो ख़ारिश है, जो इरिटेशन है, वो उसको ठीक कर रही है आपकी डाइट। और आपका अगर जितना बड़ा स्कोर पॉज़िटिव में है, यानी कि आपकी डाइट आपके लिए उतनी ही खराब है, उतनी ही ज़्यादा आपके अंदर इरिटेशन कॉज़ कर रही है आपकी डाइट और बीमारियाँ कॉज़ कर रही है। And that's exactly where they all started out. No surprise, as they were eating regular diets, and our nation is awash with inflammation related disease. But ask people to switch to strictly plant based nutrition, and their diet flips to become an anti inflammatory. तो कहता है कि ये डाइट शुरू होने से पहले का वो है, ये जो ग्रे बार दिख रहा है, तो आपको दिख रहा है कि ये बेसलाइन से ऊपर है, यानी कि इन लोगों में इन्फ्लेमेशन है और वो कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि जो लोग हैं वो इस तरह की गलत डाइट सब खा रहे हैं। लेकिन इन्हीं लोगों को
जब आपने सिर्फ प्लांट बेस्ड डाइट पे डाला, यानी कि उनका दूध, मीट, अंडा, मच्छी, घी, इस तरह का सारी चीजें बंद कर दी गई, तो देखिए कितना बड़ा एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आया। पूरी की पूरी बॉडी कंप्लीटली जो थी, उसमें सारी इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन उनकी बॉडी से चली गई। तो आज के बाद प्लीज ये देखने के बाद हमारे मन में कोई प्रश्न नहीं रहना चाहिए कि हमारी बॉडी के लिए सबसे सेहतमंद डाइट कौन सी है। ये एकदम क्लियर है, क्योंकि हर बीमारी हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन से शुरू होती है, चाहे वो कैंसर हो, हार्ट डिजीज हो, डायबिटीज हो, अर्थराइटिस हो, अल्जाइमर्स हो, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो, कोई भी बीमारी हो, वो होती इन्फ्लेमेशन के कारण है। तो जब, और हाँ, चाहे वो सोरियासिस हो, ऑफ कोर्स एक्जिमा, सोरियासिस, तो ये सारी इन्फ्लेमेशन के कारण होती है। और ये हमने जैसे ही इस डाइट पे डाला, सारी की सारी इन्फ्लेमेशन जो थी वो ना सिर्फ रिवर्स हुई, ना सिर्फ जीरो पे आई, बल्कि हेविली एंटी इन्फ्लेमेटरी, बॉडी में से इन्फ्लेमेशन का नामो निशान मिटा दिया इस डाइट ने। Inflammatory diet. And that was the case, even if they just cut out meat or just all meat except fish, but have them instead switch mostly to poultry or simply limit their meat intake in their diet remains inflammatory. तो उन्होंने कहा कि हमने अलग-अलग डाइट की, अगर सिर्फ वो फिश खाते थे, अगर वो सिर्फ जो थे वो अलग-अलग तरह का मीट खाते थे, लेकिन जब वो सिर्फ दूध और चिकन खा रहे थे, तब भी उनका ये जो लाल वाला ये जो था, ये बहुत हाई था। और अधिकांश लोग जो हैं वो, कम से कम भारतवर्ष में तो यही कर रहे हैं, क्योंकि वो सेमी वेजिटेरियन हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं, वो दूध भी ले रहे हैं और वो चिकन भी खा रहे हैं, वो अंडा भी खा रहे हैं। तो इन लोगों में सबसे अधिक प्रॉब्लम पाई गई। इसीलिए हमारी जो डाइट है अधिकांश इंडियंस की, वो काफ़ी खराब है, क्योंकि हम दूध, अंडा खा रहे हैं और चिकन भी खा रहे हैं काफ़ी लोग। Remains inflammatory. Now, not all plant foods are anti inflammatory. If all you do is boost your intake of less healthy plant foods like juice, white bread, white potato, soda, and cake, you can end up even more inflamed. तो कहते हैं ऐसा नहीं है कि सारे प्लांट फूड जो हैं हमारे लिए सेहत के लिए अच्छे हैं। अगर हम वही प्लांट फूड को प्रोसेस करके खा रहे हैं, व्हाइट ब्रेड बना रहे हैं, पिज्ज़ा बना रहे हैं, चीनी के शेप में ले रहे हैं, केक पेस्ट्री के शेप में ले रहे हैं, फ्राइड फ्रेंच फ्राइज़ खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, तो यही सारे जो चीज़ें हैं, ये हमारी इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देंगे। But if you eat a really clean diet of whole plant foods, not only do you get a significant reductions in LP little a, which we didn't even think was possible with diet, as well as drops in LDL cholesterol, of course, and even तो वो कहते हैं कि लेकिन अगर आप होल प्लांट बेस्ड डाइट खाएं, यानी कि मोटे अनाज की रोटी, दाल, चावल, सब्जी और दूध, मीट, अंडा, मच्छी, घी बंद कर दें, इस तरह का अगर आप खाना खाएं, तो आपका जो इंटरल्यूकिन 6 था, ये एकदम कम हो जाएगा। और ऐसी चीज़ हमने कभी इमेजिन नहीं की थी कि आप डाइट से इन चीज़ों को चेंज कर सकोगे। साथ-साथ जो आपका सबसे खतरनाक कोलेस्ट्रॉल है, जो बहुत ही जिसको स्मॉल डेंस एलडीएल कहते हैं, ये बहुत खतरनाक तरह का जो कोलेस्ट्रॉल है, ये भी कम हो जाता है। आपके जो टोटल व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, जो इन्फ्लेमेशन का मार्कर है, वो भी कम हो जाते हैं। the most dangerous form of LDL cholesterol. But nearly across the board, you also get a drop in inflammatory markers. आपका सी रिएक्टिव प्रोटीन भी कम हो जाता है, आपका ट्यूमर फैक्टिव नेक्रोसिस फैक्टर भी कम हो जाता है। जितने भी आपके इन्फ्लेमेशन के मार्कर हैं, सारे के सारे सही हो जाते हैं। तो जब ये डाइट लैब में ये मार्कर्स कम कर रही है, तो आपके माइंड में कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए कि सोरियासिस जैसी बीमारी को तो ये ठीक करेगी ही करेगी। तो आप प्लीज़, अगर आपको कोई भी बॉडी में मेजर बीमारी है, तो आप ये डाइट ज़रूर अपनाएँ। We're talking a 30% drop in C-reactive protein, a 20% drop in IL-6. So maybe previous studies utilizing plant-centered diets were unsuccessful because they weren't plant-based enough, with animal products still being substantially consumed. The total elimination of animal products and processed foods may therefore be a more prudent dietary strategy to combat inflammation. तो कहते हैं कि अगर आपको इस डाइट को सक्सेसफुल बनाना है, तो आप ये नहीं कर सकते कि मैं थोड़ा दूध कम कर दूं, थोड़ा थोड़ा मीट, अंडा, मच्छी कम कर दूं। नहीं,
मंगलवार बृहस्पतिवार को नहीं खाना, ये नहीं चलेगा। आपको पूरा एलिमिनेट करना पड़ेगा पूरा फायदा उठाने के लिए। तो यदि आप में ऑलरेडी कोई बीमारी है या आप नहीं चाहते कि कल को आपको कोई इस तरह की भी बीमारी हो या भूलने की बीमारी हो, कैंसर हो, डायबिटीज हो, स्ट्रोक हो, तो कम से कम अगर आपको अपना रिस्क रखना है इन बीमारियों से लड़ने का, तो आपको ये लाइफस्टाइल अपनाना ही चाहिए। अपना भी, अपने बच्चों का भी, बुजुर्गों का भी, घर में सब परिवारजनों को अगर स्वस्थ रहना है तो यही डाइट अपनानी होगी। तो चलिए, ये था हमारा अगला वीडियो। अब शायद खत्म होने वाला है। जी लिथियम जी, आप जुड़ गए हैं। मैं आपको थोड़ी देर में बस जोड़ती हूँ। ये एलोवेरा का एक रह गया है हल्का सा वीडियो, वो मैं दिखा देती हूँ। 2 मिनट का है बस, फिर हम लोग बात करेंगे। Lysporin, but they carry the long-term risk of kidney damage, hypertension, and malignancies. The drug can cause cancer, kidney toxicity in more than 50% of the patients treated long-term, and in terms of malignancies, up to तो ये बता रहे हैं कि जो एक्जिमा और सोरियासिस को जो ट्रीट करने वाली दवाइयां हैं वो कितनी खतरनाक होती हैं। ये मैंने शुरू का थोड़ा सा नहीं दिखाया क्योंकि वो लंबा हो जा रहा था, पर वो जो किडनीज का फेलियर हो जाता है 50% में और कैंसर का रिस्क जो है वो 42% 43% बढ़ जाता है। तो ये जो दवाइयां हैं, ना सिर्फ ये ठीक से काम नहीं करती, पर जब करती भी हैं तो इनके साइड इफेक्ट्स कितने ज्यादा होते हैं। 42 times the rate of cancer. And it doesn't even work that well, keeping the disease at bay in little more than half of patients over a 4-month period. और सिर्फ 57% लोगों में आराम देती है, वो भी 4 या 5 महीने तक। There's got to be a better way. What about plants, topical botanical agents for the treatment of psoriasis? Well, aloe vera gel is said to possess anti-inflammatory, anti-itching, and wound-healing properties. Yeah, but as I described before, when it was put to the test for mutation of aloe preparations has been accompanied too often by misinformation and exaggerated claims. But there is some impressive evidence. For example, to test its anti-inflammatory properties, it was tested head-to-head against steroids for mustard gas exposure. Mustard gas is probably the most popular chemical warfare agent, starting in World War I. The last widespread military use was in the 80s during the Iran-Iraq War, with more than 100,000 exposed, and many still suffering from the long-term complications, predominantly itching. Even decades after surviving a gas attack, 70 to 90% are still suffering. Topical steroids are the most frequently administered medications, and they help, but long-term use is not recommended and associated with a variety of side effects. Therefore, how about safer agents like aloe vera? 67 chemical warfare injured vets were randomized to apply aloe vera olive oil cream or the steroids, and the aloe vera mixture appeared to work as well as the drug. Okay, well then let's तो उन्होंने कहा कि जब हमने देखा कि एक्जिमा या मस्टर्ड गैस जो एक नर्व केमिकल होता है, वर्ल्ड वॉर में यूज किया गया था, इन सब चीजों से होने वाली जो इन्फ्लेमेशन देखी गई, उसको जो है एलोवेरा ने कंपेयर टू स्टेरॉइड्स कैसा काम किया, तो हमने ये पाया बल्कि स्टेरॉइड से भी बेटर काम जो है वो एलोवेरा ने किया। Give it a try for the management of psoriasis. By the end of the month-long study, the aloe vera cream had cured 83% of the patients compared to the placebo cure rate of less than 10%. तो उन्होंने कहा कि हमने जब एलोवेरा क्रीम को यूज किया तो हमने पाया कि सोरेसिस पेशेंट में 83% जो लोग थे वो सिर्फ एलोवेरा एक्सट्रैक्ट लगाने से ठीक हो गए थे उनके प्लैक्स,
और जबकि प्लेसिबो ग्रुप जो था वो सिर्फ 6.6% लोगों में आराम हुआ था। तो यानी कि हमें एलोवेरा जो है वो सोरियासिस के लिए बहुत यूजफुल है एलोवेरा। Oh, how about compared to steroids? Aloe was found to be more effective in reducing the clinical symptoms, like taking this nasty belly button and clearing the itchy, scaly rash away. तो उन्होंने कहा कि जो एलोवेरा था वो कंपेयर टू स्टेरॉइड्स, अगर स्टेरॉइड से कंपेयर करें तो एलोवेरा ने उससे भी बेटर काम किया जहां तक सोरियासिस का ताल्लुक है। जैसे आप देख सकते हैं इतना बुरा रैश था सोरियासिस का, और एलोवेरा जो जेल लगाई उसने इसको बिल्कुल क्लीन कर दिया। तो चलिए ये थी ट्रीटमेंट सोरियासिस की, कि हमें एक नटशेल में मैं बता देती हूँ हमने आज सोरियासिस के बारे में क्या सीखा, क्योंकि एक्जिमा सोरियासिस सब एक ही बीमारी के स्पेक्ट्रम पे आते हैं। तो हमने ये सीखा कि जो बीमारी होती है इस तरह की, वो इरिटेशन से होती है, इन्फ्लेमेशन से होती है। तो इन्फ्लेमेशन क्यों होती है? जिस तरह का हम खान पान करते हैं, तो दूध, मीट, अंडा, मच्छी, घी और साथ में चीनी, ये तमाम चीज़ों से इन्फ्लेमेशन कॉज होती है बॉडी में। तो हमें ये सारी की सारी चीज़ें अपनी डाइट से निकालनी है। और अगर जब मैं कहती हूँ दूध निकालना है, तो साथ में ऑब्वियसली दही और पनीर भी हमें निकालना पड़ेगा डाइट से, और चीनी बिल्कुल निकालनी है। और जब मैं कहती हूँ चीनी निकालनी है, तो साथ में गुड़ और शहद भी, क्योंकि वो भी चीनी का ही एक अगला रूप है। तो ये सब चीज़ें हमें अपनी डाइट से निकालनी है। फिर खाना क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियाँ और रंग-बिरंगे तरह के फ्रूट्स एंड सब्जियाँ हमें अपनी डाइट में खानी है। और तीसरा हमें क्या करना है? हमें हल्दी लेनी है आधा चम्मच, उसमें 1 चुटकी काली मिर्च डालनी है, और वो हमें दिन में 1 बार लेना है। और आधा चम्मच हमें क्या लेना है? पिसा हुआ अदरक लेना है, या तो फ्रेश अदरक ले सकते हैं या अदरक का पाउडर ले सकते हैं, वो हमें खाना है। और हमें साथ में क्या करना है? एलोवेरा जो जूस है वो हम पिएँ, जो फूड ग्रेड एलोवेरा जूस है उसको पिएँ दिन में 2 बार, और एलोवेरा जेल जो है वो हमें अपनी सोरियासिस पे लगाना है। इस तरह से अगर हम करेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी हमारी सोरियासिस। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मनोज भाई बाद में जाके इसको देखें और सुनें। तो चलिए अब हम लिथियम भाई को जॉइन कराते हैं और उनसे कुछ बातें करते हैं। जी लिथियम भाई, स्वागत है आपका। नमस्कार भाई। नमस्कार डॉक्टर मीरा, हाउ आर यू? गुड, वेरी गुड। हाउ आर यू? स्लीपी। सो सॉरी, सो सॉरी फॉर डिस्टरप्टिंग। पता काफी क्या देर हो करें, जा रही स्लो थी। वेव नहीं होगा और आरईएम भी नहीं होगा। आई एम सो सॉरी। हाँ, अरे रे रे रे, नहीं सब होगा, क्यों नहीं होगा। और क्या है कि थोड़ा लंबा हो जा रहा था ये रात का टाइम ना, तो कई दिन तक हम लाइव जुड़ नहीं पाए, और मैं भी काम में बिजी थी। पर चलिए हम जल्दी जल्दी कुछ बातें कर लेते हैं। और जो सुनने वाले भी लोग हैं, अगर आप में से किसी को कोई भी क्वेश्चन हो, तो ये ओपन फोरम है, मैंने लिंक पिन कर दिया है, आप प्लीज ज्वाइन करें, अपने डाउट्स क्लियर करें। नहीं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने का बिल्कुल कोशिश करूंगी। जी लिथियम भाई, क्या कहेंगे आप? तो डॉक्टर नील बार्नार्ड की दोनों तीनों वीडियो मैंने पहले भी देखे हैं, अच्छा जी। और एक जो बड़ी बात है मुझे समझ में आई हम्म। कि इनकी बात करने की शैली और इनका प्रेजेंटेशन का तरीका इतना एंगेजिंग है यस। कि सुनने वाला एकदम सुनता रह जाता है और बहुत इंटरेस्ट से बात समझ में आती है। बिल्कुल और डॉक्टर ग्रेगर के बारे में तो मैं जो कहूँ वो कम है। बिल्कुल। ही इज सो एंटरटेनिंग हम्म। इन हिज प्रेजेंटेशंस। हम्म। उसी में एक बात और जोड़ता हूँ हम्म। कि डॉक्टर बर्नार्ड की एक वीडियो है डॉक्टर नंदिता शाह के साथ, करीब 6 साल पुरानी है वीडियो, यूट्यूब पे अवेलेबल है। एंड शी एंड ही आर डिस्कसिंग इंडियन कुकिंग, vegan ways, हम्म।
there might be some differences of opinion. कुछ लोगों ने कुछ चीजें कही हैं उसमें. Maybe you can check it out and see if it's as per today's understanding. What was the name again of that lady? Dr. Nandita Shah. आनंदिता शाह, ठीक है, मैं याद रखूंगी जी. और वो डॉक्टर नील बार्नार्ड के साथ उन्होंने वीडियो बनाया. जी. तो उसमें वो इंडियन रेसिपीज डिस्कस कर रही हैं कि कैसे हम वीगन डाइट को इंडियन रेसिपीज में ले सकते हैं. खैर, आज जो मैं जरा टेढ़ा सवाल लेके आया हूँ वो ये है कि डॉक्टर ग्रेगर की किताब मैं पढ़ रहा था, हाउ नॉट टू डाई, और उसके पेज नंबर 459 पर उन्होंने विटामिन B12 के बारे में कुछ लिखा है. और उसमें खास करके वो कहते हैं कि रिकमेंडेशन है फॉर पीपल अबव 50 कि कम से कम 250 mcg माइक्रोग्राम्स आप लीजिए दिन में. नाउ माय बिगेस्ट प्रॉब्लम इज, या फिर अगर आप हफ्ते में ले रहे हैं तो उसको 10 टाइम्स से मल्टीप्लाई करते हैं, 2000 या 2500 की गोली आप हफ्ते में, जिसके बारे में हमने पिछली बार बात करी जी. नाउ 2000 और 2000 mcg is roughly 2 or 2.5 milligrams of vitamin B12. Now my problem is कि ऐसी एक भी दवाई मुझे नहीं मिली इंडियन फार्मेसी में जिसमें इस तरह का डोसेज अवेलेबल. तो इंडियन फार्मेसी में क्या डोजेस मिल रहा है आपको? It's 100th of this value. So let's discuss these two. मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ. I don't think micrograms is the same as milligrams, right? उसका देखना पड़ेगा. No, of course not. Of course not. 1000 micrograms correct is 1 milligram. Correct. So he's talking of 2000 micrograms. Right? So which is 2 milligrams. Correct. Now, what I have found is that let's talk about a popular medicine called Bicosune. तो उसमें केवल 15 माइक्रोग्राम. कितना? 15. 15 microgram. 15, yes. Oh, that is nothing. I know. Then I thought that maybe this book, which was written in 2015, may have a typo or something. So I went to look. I went to RD to look at the recommended daily dosages. तो उसमें आया कि you need an RD of only 2.4 micrograms per day. So there is some disconnect somewhere which I could not understand, because आप अगर उस दवाई के पीछे के लेबल को पढ़ेंगे तो उसमें वो एक और दवाई है जिंकोविट नाम की, उसमें बल्कि उसमें 12 माइक्रोग्राम्स हैं और बिकोसून्स में 15 है और वाइस वर्सा समथिंग लाइक दैट. So in another video, so I did all kinds of things. I went to see what Dr. Greger says. He has a video specifically on B12. तो उन्होंने एक कैलकुलेशन करा है कि आपको 50 mcg चाहिए दिन के, और फिर वो कहते हैं कि अगर इसको आप हफ्ते में लें तो इसको 2000 ले लें. तो 15 to 7 is only 350. वो 2000 कैसे बनता है ये मुझे समझ में नहीं आया. नहीं, the 2000 वाला part is correct. ये जो 50 वाला है that is not correct. No, but it is Dr. Greger was saying this, so I know. So see, what happens with these vitamins is they get stored in our body for a long time. So it's okay to take little extra, and most of these vitamins have a big range. जैसे आप vitamin D को देख लो, उसकी range है 30 to 100. And body is very innately intelligent कि अगर आप थोड़ा बहुत इधर उधर भी लेते हो तो एक तो उनका रेंज बहुत लंबा होता है. तो B12 का भी रेंज काफी बड़ा है नॉर्मल का ना, तभी तो आपको इतनी वेरिएशन मिल रही है अलग अलग साइट्स पे. बड़ा होना तो ठीक है, उनका रिकमेंडेशन आई एक्सेप्ट कि 2000 होना चाहिए, लेकिन बाजार में दवाई तो मिलनी चाहिए ना. आई अंडरस्टैंड. उनका रिकमेंडेशन शायद इसीलिए बड़ा है क्योंकि
रेंज बड़ी होगी। तो या तो 50 वाला नंबर ठीक नहीं है, पर 2000 वाला नंबर ठीक है, ये मुझे पता है, क्योंकि जितने भी लोगों का मैंने देखा है अभी तक, दे ऑल टॉक अबाउट दैट 2000। सो डेली पे मत जाइए, आप वीकली पे जाइए। हाँ, अग्रीड, आई गो विद दैट, बट मुझे बाजार में दवाई तो मिलनी चाहिए ना। सो हाँ, अब मैं क्या इफ बताऊं, आई इंडिया में नहीं मिल रही। अच्छा, इंडिया में जो मिलीग्राम में मिल रही है वो कितनी मिल रही है? so I get a 15 mcg dosage in a multivitamin. I हाँ, don't get only vitamin B12. I don't. The only way I can get vitamin 12 is through these two or three combinations, which are multivitamin. ओ नहीं। One is Bicosules, the other is Zincovit, another is Vitamix. But उन सब में जब उसके आगे वट एवर डोसेज वो लिखते हैं, उसके आगे RDA लिखते हैं, हाउ मच they are meeting the recommended daily value. So that happens to be, when they write 2.4, they're saying you're meeting your daily value. So there is, I just could not understand. Wait. How do I write these things? Wait. तो जो amount मिल रहा है, forget the RDA value. I'm not going to go by Okay. what they recommend because we already have a number in our mind. Just tell me, जो गोली मिल रही है बाजार में, वो कितने माइक्रोग्राम की मिल रही है, एक बार फिर बताएं। हाँ, तो अगर मैं रोज ले लूं 15 mcg, 15 mcg मिल रही है, okay, right, and it will never match up to 2000 mcg per week. correct, तो कम मिल रही है। What about ऑनलाइन मिल रही है क्या? नहीं, ऑनलाइन ही चेक कर रहा हूँ, and then I'm taking screenshots of what is behind the label, and no matter what I do, I can't get anything close to 2000 mcg per week. Nothing. ओके, तो फिर ऐसा कर सकते हैं कि दिन में 2 या 3 विटामिन B12 ले लीजिए, वो 15 वाली। तो मैं और क्या बताऊं, आई थिंक द साइंस हैज नॉट रियली कॉट अप विद द विटामिन इंडस्ट्री इन इंडिया येट। तो वो अभी क्योंकि इंडिया में बहुत अधिक मात्रा में लोग दूध पी रहे हैं, मीट अंडा मच्छी खा रहे हैं, तो मे बी दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट B12 एज अ रियल सप्लीमेंट। सो I think that's the problem. तो आप जो प्योर वीगन हो जाते हैं, जिनको सही में B12 की जरूरत है, फिर आप यही कर सकते हैं कि आप जो है दिन में 3 गोली खा लीजिए, वो 15 वाली, and somehow you'll fall in the therapeutic range. That's my best advice. Can I request you to just look up that particular video by Dr. Greger on vitamin B12? Sure, yeah. Yeah, because that is where he discusses how he translated 50 mcg per day sure. to 2000 mcg per week. Yeah, sure. Okay, so this is a disconnect that I bought this book. It's about 650 pages. Okay. How Not to Die. Right. So it's outstanding. No question about it. Yeah, that's the first book I read of Dr. Greger's, and then since that day, it was no turning back. I agree. Mahadi, and for someone who writes 460 pages of text and he backs it up with about 150 pages of notes or references, it's serious stuff. I mean, I'm just so impressed. And I already sent it to a couple of my friends. One, I, of course, have sent it to that person. And that person writes to me that I can't tell you how much I'm thankful for you to send this book to me. But that's beside. So there was a disconnect. There's some data mismatch somewhere. That's okay. Yeah, we'll figure it out. Yes. भूपेंद्र कुमार भाई, आप भी ज्वाइन कीजिए। आप कह रहे हैं आप कोशिश कर रहे हैं। जी लिथियम भाई, प्लीज कंटिन्यू। ओ, टमाटर भाई सोने जा रहे हैं। गुड नाइट टमाटर भाई जी, टाइम पे सो जाना चाहिए, वो भी बहुत जरूरी है। जी लिथियम भाई, कंटिन्यू करें। Okay, so the second question is about that everyone I talk to in India, they say कि अलसी की तासीर गरम। So I'm not into तासीर. All I know is scientific fact. Yeah. I understand. I'm totally with you on that. Yeah. So I'm not going to stop taking alsi, but is there any data which supports
anything of this kind? Because Absolutely the many opposite. Yeah. okay. So the data, this hot and cold is all folklore, wives' tales. ये कहीं सुनी बातें हैं सारी. It has nothing to do with actual science. क्योंकि साइंस हमें क्या बताती है? साइंस बताती है कि जब फ्लैक्स सीड लिया जाता है तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है, सारे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कम हो जाते हैं एंड अधिकांश बीमारियों में बहुत फायदा होता है. एंड साइंस बिगिंस एंड स्टॉप्स एट दैट. दैट्स द मेडिकल रिसर्च. ये तासीर गरम ठंडी ये सब इन सब बातों में मेरा कोई वो नहीं है. I want to see, I need to see double blind placebo controlled randomized trials to even talk about anything. I only talk research like Dr. Greger. So Yeah. जी, So जी, I just wanted to run this by you because Sure, this sure. is a question that many people will come back to you with on this thing. About vitamin D, there is Dr. Bernard भी खुद कहते हैं जी. if you were to spend about 30 minutes out in the sun with bare arms and of course on your face, it will meet your daily requirements of vitamin D. तो अगर वो ना कर पाए, खास करके हमारी लैटिट्यूड्स में जहाँ पे सन अच्छा तेज होता है, नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स में जरा मुश्किल होगी क्योंकि सन की तीव्रता कम होती है, यूवी रेज इतनी स्ट्रांग. So those of people who want to rely less on pills will be able to at least make up for D3 by just simply sitting in the sun for a short while, even in the summers. Right. I wouldn't recommend that because there are lots of people problems happening. जो हमने पाया है कि it's not just about vitamin D. जो स्किन की एजिंग प्रोसेस है वो तेज हो जाती है सनलाइट में बैठने से और हमारा एक्चुअल डीएनए रिपेयर होता है. आप किसी भी मजदूर को देखिए जो सन में काम करते हैं, वो झुर्रियां कितनी जल्दी पड़ जाती है उनके फेस के ऊपर. तो दैट जस्ट शोज इट्स नॉट अबाउट ब्यूटी, it's about actual aging process of the skin. That's one. Number two, बहुत से लोगों को स्किन की हाइपर सेंसिटिविटी होती है. आप जब सन में बैठते हैं तब पता नहीं चलता, बाद में आपको रैशेस, इरिटेशन और इसको डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं. तीसरी चीज, स्किन कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है क्योंकि ओजोन की लेयर इतनी पतली है. तो ऊपर से जो विटामिन डी का जो रेंज है वो इतनी बड़ी है. इवन टू मेक इट टू द मिनिमम 30, there's a huge struggle. तो ये अगर लोग कहें कि मैं सिर्फ सन में बैठ के नॉर्मल विटामिन डी लेना चाहता हूं तो फर्स्ट आई वांट देम टू प्रूव इट बाय मेडिकल टेस्ट कि वो हेल्दी रेंज में आ चुके हैं. देन दे कैन स्टॉप टेकिंग विटामिन डी सप्लीमेंट एंड ओनली देन, नॉट जस्ट बिकॉज किसी डॉक्टर ने कहा कि बिना लाइक आर्म्स को एक्सपोज करके सन में 15 मिनट आधा घंटा बैठो. सो दैट्स व्हाट आई मीन. वी हैव टू टेक विटामिन डी सप्लीमेंट एज लॉन्ग एज वी कैन नॉट प्रूव कि हमारा ठीक हो गया है. दूसरी बात, वो 30 to 100 की रेंज में भी पाया गया. आपका जितना अच्छा लेवल होगा उतना ज्यादा आप बीमारियों से बचे रहेंगे. तो जस्ट bare 30 won't do. At least get it close to 50 is my thing. So I still recommend a D3 supplement. I'm with you on that. जी. खास करके most of the walks happen early in the morning क्योंकि काम पे जाना होता है. तो उस वक्त तो वैसे भी सनलाइट इतनी आती नहीं. करेक्ट. और जब आती है तो उसमें बैठने के अपने साइड इफेक्ट्स बहुत हैं. तो आई वुड से कि सुबह शाम की हल्की धूप में जरूर जाइए. सन के और भी बहुत बेनिफिट्स होते होंगे, बट डोंट एक्सपोज योरसेल्फ टू सन इन द फुल सन एंड फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम बिकॉज इट हैज इट्स ओन प्रॉब्लम. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, गेट योरसेल्फ टेस्टेड. पहले अपना टेस्ट कराइए विटामिन डी का, फिर सप्लीमेंट्स लीजिए, उसको नॉर्मलाइज कीजिए, फिर आगे की बात सोचेंगे. जी. तो जब आपने बात छेड़ ही दी है तो एक सवाल जो मैंने बहुत दिनों से नहीं पूछा है जी. वो पूछ लेता हूँ कि हमें कौन सा टेस्ट किस इंटरवल पे कराना चाहिए या कौन से टेस्ट. जी. तो जो यहाँ पे रूटीन फिजिकल होता है अमेरिका में, हमारी रिकमेंडेशन होती है कि साल में एक बार
जेनेरिक टेस्ट करा लेनी चाहिए जिसमें आपका हीमोग्लोबिन सीबीसी आता है, यानी कि हीमोग्लोबिन के साथ साथ आपके वाइट ब्लड सेल काउंट क्या है वो आ जाता है, मतलब ब्लड पैनल आ जाता है। दूसरा फास्टिंग ग्लूकोज, ताकि आपको पता चल जाए कि आपका शुगर तो नहीं है आपको। लेकिन फास्टिंग ग्लूकोज से ज्यादा बेटर है कि हीमोग्लोबिन A1C कराएं, क्योंकि फास्टिंग ग्लूकोज सिर्फ एक्सक्यूज मी, जब हमें प्रिक किया तब हमारी शुगर कितनी है हमें वो बताता है, पर पिछले कुछ हफ्तों या महीनों में हमारा शुगर कैसा था वो नहीं बताता। तो आप प्लीज फास्टिंग ब्लड शुगर मत कराइए, आप A1C कराइए, हीमोग्लोबिन A1C कराइए शुगर के लिए। तीसरा, आप किडनीज के लिए क्रिएटिनिन, ब्यूएन क्रिएटिनिन कराइए। फिर थायराइड का पैनल कराइए कि थायराइड हार्मोन आपका ठीक है या नहीं। फिर आप लिवर प्रोफाइल कराइए कि लिवर आपका ठीक है या नहीं। और फिर कोलेस्ट्रॉल और विटामिन डी, डी एज इन डेविड। इतने टेस्ट जो है नॉर्मल होते हैं, और साल में एक बार नहीं, तो अगर आप बहुत यंग हैं तो साल में एक बार करा लीजिए, और थोड़े मिडिल एज हैं तो एवरी अदर ईयर करा लीजिए। बट इंडिया में तो इतना नॉन एक्सपेंसिव है, फ्रॉम व्हाट आई हियर, एंड वेरी कन्वीनियंट, घर आके सैंपल ले जाते हैं, तो साल में एक बार करा लिया तो दैट्स गुड। तो इन तो फिर बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि नंबर्स की इंटरप्रिटेशन, क्या एक टेस्ट में और जोड़ दूं इसमें कि फास्टिंग इंसुलिन भी करा लेनी चाहिए। इफ every doctor of his birth is salt, coming from your country, has been telling us about this, but I leave that recommendation to you. हाँ, But बिकॉज मेरा A1C ही अगर आपका ठीक है तो दैट विल गिव यू अ वेरी गुड आइडिया। और no, it doesn't, ma'am. नहीं नहीं, I वही, क्योंकि अगर आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो 10 साल पहले शुरू होने लग जाती है, बिफोर यू सी A1C इंक्रीज। आई एग्री विद यू। तो अगर इफ यू वांट टू बी मोर पर्टिकुलर, आप इंसुलिन करा लीजिए। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मुझे नहीं लगता कि जिन लोगों का इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने लग गया है वो लोग इसके बारे में कुछ करेंगे, क्योंकि क्या होगा कि ये लोग जब इनको पता लगेगा कि मेरे अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, वो कहेंगे पर मैं अपने डॉक्टर के पास गया, उसने कहा ब्लड शुगर तुम्हारा ठीक है, H1C आपका ठीक है। सो आई गो हेड, डू इट, बट आई एम skeptical that people will actually do anything about it. That's where I am. Otherwise it takes about 10 years before, इससे पहले कि आपको A1C में फर्क पता चले। जी। yeah, the point is कि अगर इंसुलिन टेस्ट करने तो जल्दी पता लग जाए. That's the Correct. only limited point. Correct. About 10 In years fact, the it's a difference far है। better, yeah, it's a far better marker than A1C itself. Correct. So then my question that I follow is कि इनकी जो interpretation है, एक range दी रखी होती है. That range itself is up to so much of इतना वेरिएशन होता है उसमें कि आपका नंबर हाईलाइट हो जाता है कि अगर Correct. लेस है या ज्यादा है, वो तो हो जाता है, लेकिन हाउ मच ऑफ डेविएशन शुड वन रियली वरी अबाउट? Then it really falls under more like common sense, अगर बहुत ज्यादा ऑफ रेंज है you'll worry more, हल्का सा है तो कि हम डाइट चेंज करते ही हमारा ठीक हो जाएगा, nothing to worry, let's get to work. But also take it as a warning कि अगर हमने अभी डाइट नहीं ठीक की और कम हमारी खराब रेंज है तो जल्दी ही we can expect कि ज्यादा खराब हो जाएगी. So things like that, depending on कितना वेरिएशन है, we can be concerned accordingly. बट मैं तो यहां तक कहूंगी, चाहे कितना भी वेरिएशन हो, डू नॉट गेट डिस्करेज, डू नॉट गेट कंसर्न। जैसे ही हम डाइट ठीक करेंगे, विद इन अ मैटर ऑफ फ्यू वीक्स हमारे सारे मार्कर्स शुड बिगिन टू कम बैक इनटू द ग्रीन जोन. सो इट्स नथिंग टू बी अलार्म्ड, बट इट शुड बी टेकन एज अ रोड मैप कि वी हैव टू करेक्ट आवरसेल्व्स एंड पिक अ डिफरेंट राउट. तो आपकी बात में एक एडिशन कहूंगा कि आपका एक जी. पेशेंट और जुड़ गया मेरी तरफ से हम्म 3 हफ्ते पहले, हम्म और फाइनली उनका परसों एक मैसेज आया कि आफ्टर इयर्स उनका फास्टिंग शुगर हैज बीन बिलो 100. वाओ. और पहले कितना था? आफ्टर इयर्स, पहले तो 140, फास्टिंग 140 से ऊपर.
फास्टिंग 140 से ऊपर था, तो दिस पर्सन वाज क्लियरली because her डायबिटिक। HbA1c was running like 9, 10, 11. ओह, So I almost sort of took a 2.5 hour class with her and अरे वाह, trying to आप explain things अरे in the फैंटास्टिक best way लिथियम जी, possible. बहुत बड़ी सेवा की। तो वो डायबिटिक थे पर वो इंसुलिन पे थे हाँ, या हाँ, ओरल मेडिकेशन? जैसे ही मुझे पता लगता है ना तो मैं तो फिर मेरा चालू हो जाता है। हाँ, हाँ जी, So जी। लिथियम जी वो इंसुलिन पे थे या ओरल मेडिकेशन पे थे? नहीं, she was still on metformin and मेटफॉर्मिन, ओके। sulfonylureas. Yeah. अच्छा, और उसके So बावजूद भी उनका फास्टिंग 140 था, लेकिन जब वो yeah, वीगन डाइट पे तो उनका एकदम नॉर्मल हो गया एंड आफ्टर इयर्स। वाओ! और after कितने दिन? years, she reports to me that while the HbA1c is still high, which is natural, करेक्ट, because 3 हफ्ते में 12 हफ्तों का एवरेज ठीक नहीं हो सकता. करेक्ट, करेक्ट, HbA1c is an average of 3 months. राइट। तो मैंने उनको कहा कि आप HbA1c की मत फिक्र करो, आप इसको देखो कि फर्क पड़ रहा है. बिल्कुल, तो बिल्कुल, मेनली उनकी डायबिटीज़ ठीक होगी ना, शी इज़ डायबिटिक फ्री। जी, तो तो अब स्लोली वो फिर दवाई ले रही हैं क्या फिर वो? दवाई तो अभी ले रही है, because after all, I'm not a doctor. I हाँ, can only give her हाँ, information. करेक्ट। सो नाउ शी हैज़ टू गो सी हर डॉक्टर एंड डिसकंटिन्यू Yes, हर मेड्स एंड yes, कंटिन्यू yes, लाइक yes. दैट। So there फैंटास्टिक। is some movement, and I wanted हाँ, to give you that ओह! information. थैंक यू लिथियम जी, आपने एक और पर्सन की डायबिटीज़ ठीक कर दी है, तो बहुत ही अच्छा हुआ। जी, भूपेंद्र भाई आप जुड़ गए हैं, आपका स्वागत है। क्या कहेंगे भूपेंद्र भाई? जी डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ, नमस्कार भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया डॉक्टर साहब। जी भाई, क्या कहेंगे आप? अभी मेरे पास क्वेश्चन कोई है नहीं। जी, कोई बात नहीं यहाँ भाई पे जो अभी। यहाँ हाँ, पे जो मल्टीविटामिन्स मिलते हैं वो मल्टीपल एलिमेंट्स के साथ में मिलते हैं, प्लेन में नहीं मिलते हैं। अच्छा, हाँ। वो बहुत हानिकारक है भाई, वो हमें एक्सेसिव विटामिन्स लेने नहीं चाहिए, सिर्फ B12 और विटामिन डी लेना है हमको ना। पर जी कोई बात नहीं, ये लिथियम जी कह रहे हैं कि B12 मिल जाता है पर वो छोटी मात्रा में मिलता है, तो मैंने कहा वो नहीं, अगर B12 अकेला नहीं मिलता है मैम, sorry. अच्छा, हाँ, ओ मैंने इसीलिए करेक्ट Yeah, करने yeah. के लिए It's मैंने part of the vitamin. That's the problem. अच्छा, उसमें और क्या-क्या रहता है? जिंक, हाँ, आयरन, बहुत सारे ओ एलिमेंट्स होते हैं। जिंक, आयरन, नहीं, इन सब की कोई जरूरत नहीं, आयरन तो वैसे ही नहीं चाहिए बॉडी में। तो जो आपने अभी कहा था ना कि 3 टैबलेट्स पर डे लेना है, तो उसी के हाँ, साथ मैंने कहा करेक्ट कर देता हूँ, नहीं तो लोग खाने लगेंगे। अच्छा, हाँ भूपेंद्र जी, ये तो बहुत ही गड़बड़ बात है। और जितना भी ढूंढो इंटरनेट पे कहीं भी B12 अलग से नहीं मिलता क्या? नहीं, प्लेन नहीं मिलता है मैम। नहीं ओ मिलता. ओ So ओ let me read the contents of Bicosuz, which is a very popular uh, हाँ, capsule. So उसमें है thiamine mononitrate 10 mg, हम्म, riboflavin 10 mg, pyridoxine hydrochloride 3 mg, vitamin B12 15 mcg, हम्म, niacinamide 100 mg, calcium pantothenate 50 mg, folic acid 1.5 mg, biotin 100 mcg, ascorbic acid, which is essentially vitamin C, 150 mg, and excipients of US, which is quantity sufficient. So there is no iron. हाँ, आयरन नहीं है, पर बेसिकली सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सारे विटामिन हैं और साथ साथ में विटामिन सी भी है, तो it's not a bad combination. Vitamin C doesn't really harm you. So, but I don't like the idea of taking all these excessive vitamins for no reason. तो पर बी कॉम्प्लेक्स का आप इंजेक्शन लगवा सकते हैं क्या? इंडिया में? मैम जो यहाँ पे टैबलेट्स आती हैं, कैप्सूल्स आते हैं, सिरप्स आते हैं या इंजेक्शन आते हैं, सब में सेम कॉम्बिनेशन रहता है। ओके। क्योंकि वो तो एक ठीक ही है। नाम को जो है कंपनी जो हम्म, है ट्रेडमार्क करके रखती है, तो वो सेम प्रोडक्ट ही जो है वो करती है। ठीक है। फिर आप दिन में ले सकते हैं 2 से 3
तो आपको बेसिकली बी कॉम्प्लेक्स मिल रहा है थोड़ा एक्स्ट्रा, इट्स नॉट दैट बैड, तो इट्स ओके, पर आपको मेनली B12 मिल रहा है, सो दैट्स गुड। तो ठीक है भूपेंद्र भाई, क्लैरिफाई कराने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है जी, नरेंद्र भाई गुड नाइट भाई। तो चलिए फिर आज यही खत्म करते हैं, ऑलमोस्ट 3 घंटे हो गए हैं, है ना? जी तो बिल्कुल। लिथियम जी बहुत बहुत थैंक यू आपका, ये डायबिटीज वाली बात आप बताने के लिए आगे, क्योंकि ऐसे ही हम एक दूसरे को ये बातें बताएंगे तो फिर फायदा होगा और लोगों तक ये मैसेज पहुंचेगा, तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नहीं, भूपेंद्र भाई सॉरी, मैंने आपको म्यूट कर दिया था, थोड़ा शोर आ रहा था। तो चलिए इसी के साथ फिर आज हम खत्म करते हैं आज का यहीं पे मेडिकल चौपाल। साथ जुड़ने का सबका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे और बहुत सेहतमंद होंगे, और प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, ये बातें पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है आगे तक लोगों तक पहुंचे। तो अगली बार तक के लिए सबको ढेर ढेर प्यार। जय हिंद, वंदे मातरम। जी डॉक्टर साहब, नमस्कार। जी नमस्कार।